Please join me in welcoming our guest on the show today, the Global CEO of Organic India, Krishan Gupta. Welcome to the program, Krishan. Thank you, Varan. Organic India and the humble Tulsi. Two stories very closely interlinked, and of course, the Tulsi has been very dear to all Indians, you know. Right from childhood we hear stories about it. But today, it's globally recognized for fabulous health benefits, and I think Organic India has played a huge role. So let's start with that story. Tulsi is the queen of herbs. This is known to every Indian because it is planted in most of the courtyard or the houses in India. Unfortunately, the real benefit what Tulsi had was never brought to the notice of the Indians and to the world. What Organic India did is brought this queen of herb, the best adaptogen available on the planet. What I mean by adaptogen is best stress buster available on this planet to the world. It is in fact a way of saying blending India's legacy or India's tradition with modern science and bringing to the world the best stress buster available on this planet. And today I think its properties are recognized across the world. A person taking Tulsi or Tulsi tea or Tulsi in any form is assured of having benefits of stress-free life. Along with that, lot of health benefits. You are assured of making sure that cough, cold and other related disease, certainly you will be away from them. Is your organization also privy to certain studies, and have you seen proof of all these benefits coming? We have studies of last 40 years done by one of our experts, Dr. Narendra Singh. The complete studies are published in form of different books across the world, and it is clearly coming out from these studies that Tulsi, as I said, is the best adaptogen. And not only the studies, let me share some of the personal experiences I had traveling across the world. During my travel to some of these destinations, I come across people, and I must share with you an interesting case where the owner of a restaurant which is in Holland, Dutch. I saw about 50% of the total consumers drinking Tulsi tea over there. I was quite stunned. I thought I'm sitting in India. When I got interacted with the owner of the restaurant, he said, "This Tulsi saved my marriage." Oh. I said, "What happened?" Okay. He says, "Me and my wife started taking Tulsi, and within a couple of weeks, we realized the real calming effect it had on us." Okay. So this is where I bring in a lot of testimonials we get across the world on the benefits of Tulsi. तो ये जो तुलसी टी एक बड़ी फैंसी सैशेस वगैरह में आती है और हम लोग डिप करके उसको लेते हैं, तो जो हमारे बरामदों में, हमारे गार्डन्स में, हमारे गमलों में जो तुलसी का प्लांट उगता है, तो उससे हम क्यों नहीं चाय बना सकते? जब हमने ये प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा था, everyone used to say, "I'm taking Tulsi. I put Tulsi in my tea." But the sad part is, हम 2 पत्ते तुलसी के चाय में डाल देते हैं, उसे इतना उबालते हैं कि तुलसी के वॉलेटाइल सब चले जाते हैं। उसमें जो ऑयल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तुलसी चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है, मुझे मत उबालो, लेकिन हम उसे इतना उबालते हैं, सारे वॉलेटाइल चले जाते हैं। इट इज एज गुड एज नॉट रियली ड्रिंकिंग तुलसी, नंबर 1। नंबर 2, just putting 2 or 3 leaves is not an issue. It will not give you the benefit what Tulsi is supposed to do. तो कम से कम एक कुछ मात्रा में तुलसी लेनी जरूरी है, जो हम एक तुलसी टी बैग के द्वारा लोगों को कन्वीनियंस के लिए, उनके आसानी के लिए। और मैं सबसे बड़ी बात यहाँ बोलना चाहूँगा, जो तुलसी हम उगाते हैं उसे ऑर्गेनिकली ग्रोन करते हैं, जिसके कारण उसके अंदर ना तो कोई हैवी मेटल्स रहता है, ना कोई उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स रहते हैं, और हमारा जो भी पदार्थ, जो भी हम क्रॉपिंग करते हैं, ये हम इंटरनेशनल मापदंडों को मीट करते हैं। और अगर हम घर से बनाना चाहें तो काफी मात्रा में पत्ते लें, उनको उबाले नहीं, पर उनको थोड़ा दम दें, पानी में दम दें। सच्ची बात यह है, सबसे अच्छा है यदि हम फ्रेश तुलसी को अपने घर के आंगन से ही तोड़ें, सफिशिएंट मात्रा में तुलसी के पत्ते इस्तेमाल और फ्रेश तुलसी का इस्तेमाल करें। उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब इतनी सारी तुलसी, इसको कमर्शियल मात्रा में इसको एक उगाना और फिर उसको अपनी इंडस्ट्री में एक तरह से उसको बुनना और किसानों को ये इनकरेज करना कि उगाएं, तो ये जो आपका जो बिजनेस मॉडल है, इसके बारे में कुछ शेयर करिए, बिकॉज दिस इज अ यूनिक बिजनेस मॉडल।
the unique business model what we have is, it is about win-win situation for everyone in the chain. When I say everyone in the chain, we start with the mother earth, धरती माँ. हम सही में धरती माँ के अंदर कोई भी अब्यूजिव टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह नहीं डालते हैं. जो इस देश का इतिहास है, ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रोइंग हर्ब्स और ग्रोइंग प्लांट, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं. सो धरती माँ खुश है हमसे. धरती माँ से नेक्स्ट स्टेज आता है फार्मर्स का. किसान मेरे साथ इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है कि उसे ऑर्गेनिक करना है या उसे तुलसी करना है. लेट अस बी वेरी क्लियर, किसान इज मोर बॉदर्ड अबाउट हाउ मच रिटर्न्स ही इज गेटिंग फ्रॉम द क्रॉप. इसकी आमदनी कितनी. इन एडिशन टू दैट, उसके बाद धरती माँ की सेवा भी होती है. लोग भी उसका खाके तुलसी या फिर और जो भी पदार्थ उगाता है उनसे उसकी सेवा होती है. उसकी कैटल फीड खुश रहता है, उसका परिवार खुश रहता है, एनवायरमेंट खुश रहता है, तो किसान भी खुश रहता है. तो सेकंड जो हमारा स्टेप आता है फार्मर्स, वी रियली पे प्रीमियम प्राइजेस. मार्केट से बहुत ही ज्यादा प्रीमियम प्राइजेस पे हम उनके साथ काम करते हैं. केवल एक रिश्ता केवल खरीद और खरीदारी का नहीं है किसान के साथ, लेकिन हम उनके साथ जोड़ के काम करते हैं. हमारे आजमगढ़ प्रोजेक्ट हो गया, राठ प्रोजेक्ट हो गया, वहां पर हमने मेडिकल क्लिनिक्स खोली हुई हैं. फ्री के अंदर मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है. यदि कोई किसान का बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसे स्कॉलरशिप दी जाती है, और यदि पढ़ के बच्चा अच्छा निकलता है तो हमने अपनी कंपनी में भी उसको जॉब देने का इंतजाम कर रखा है. मतलब लाइवलीहुड पूरा लिंकेज आप ले रहे हैं विद द कम्युनिटी. किसान के साथ है और वो एक परिवार की तरह है. मैं खुद हमने किसान के साथ साल के अंदर 2 या 3 बार पर्सनली जाके मिलते हैं, उन्हें ऑनर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं. सो दूसरा स्टेज हो गया किसान का. तीसरा आता है एंड कंज्यूमर, जो कि आपके दर्शक हैं. व्हाट वी मेक श्योर इज, जो भी एंड कंज्यूमर है, ही और शी इज assured of getting authentic organic product. There is no compromise on the product side. Then comes the environment. Environment के लिए हम केवल जो प्रोडक्ट पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं वो या तो रिसाइक्लेबल है या बायोडिग्रेडेबल है. And of course then comes the employees who are never treated as an employee, but everyone is an entrepreneur or a partner. Like a family. Like a परिवार. आपकी ऑर्गेनाइजेशन से थोड़ा हट के जनरल एक मॉडल पे आते हैं. To actually take it to the end consumer across the world, एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाना, और एक बिल्कुल रूरल लेवल से शुरू करके और सारी चेक्स एंड बैलेंसेस, सारी क्वालिटीज लाना, क्वांटिटीज लाना. तो इसमें क्या चैलेंजेस क्या है, कुछ शेयर करेंगे? सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो सोच है उसे कैसे टॉप लेवल पे एक तो कोई भी हम डगमगाए ना, वो एक बहुत बड़ी चीज है. मेरी जो समझ है, ऑल दी बॉटलनेक्स आर एट द टॉप. I am yet to see a bottle where the neck is at the bottom. So मेरी समझ है, यदि मेरी सोच क्लियर है, मेरे दिमाग में स्पष्ट है कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दिमाग क्लियर है, तो डाउन द लाइन पर्कुलेशन बिकम्स इजियर. और हमें बहुत अच्छी किस्मत है कि जो हमारा बोर्ड है कंपनी का, जो हमारे टॉप मैनेजमेंट के साथी हैं, वो सब इसी लगन में एक जो मॉडल बोला जाता है व्हीकल ऑफ कॉन्शियसनेस, इस कंपनी को उसी की तरह चला रहे हैं. और आपको मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से, किसान सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए तैयार है यदि उसे साथ दिया जाए, उसको हर तरीके से उसकी मदद करी जाए. तो मुझे लगता नहीं है कि चाहे वो छोटा किसान हो, किसी भी देश के कोने में हो, वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट, इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन मीट करने वाला प्रोडक्ट बनाता है. आजकल की जो हम खेती के बारे में सुनते हैं, वॉल्यूम्स की वजह से लोग ऑर्गेनिक नहीं रहते. दे यूज पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो लॉन्ग टर्म पूरी फूड चेन को पोल्यूट करते हैं. तो ऑर्गेनिक रहना किसान के लिए फायदेमंद हो सकता है. टॉक्सिक केमिकल यदि किसी भी फसल में डालते हैं, वो टॉक्सिक केमिकल फ्रूट के द्वारा या उस क्रॉप के द्वारा एंड कंज्यूमर तक जाता है. बिल्कुल. वो चारे के रूप में कैटल के अंदर फीड में जाता है. तो हम बेसिकली पूरे सिस्टम को ही बिगाड़ रहे हैं. एब्सोल्युटली. ऑर्गेनिक रहने के फायदा ये है, हमारी जो रिसर्च बोलती है, हमने जो इतनी डिटेल स्टडी करी है, किसान हमने आज से करीब 12 साल पहले एक किसान से शुरू की थी और आज हमारे साथ हजारों किसान जुड़े हुए हैं. इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, हमारी यील्ड्स भी अच्छी हुई हैं, हम हमारे किसान को रिटर्न भी अच्छा देते हैं, और सबसे बड़ी बात है एंड कंज्यूमर भी हमसे खुश है. सो कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से ही फ्यूचर है. ऑर्गेनिक मेरे हिसाब से ही एक तरीका है जहां पर हम शुद्ध खाना हर इंसान को जिस धरती पर है उसका हक बनता है उस तक पहुंचा सकते हैं. कौन सी ऐसी क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर में हैं
जो एक्चुअली एक बिजनेस को रियली हेल्प, बिकॉज विजन और मिशन सब कुछ ही नहीं होता। आप यदि बिलीव करते हैं अपने प्रोडक्ट में, आप यदि बिलीव करते हैं अपने मॉडल में, तो उसको परसिस्ट करिए। हो सकता है आज तकलीफ हो, जरूर आपको कल सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने भी जब ये मॉडल शुरू करा था हमारे पे बहुत सी उंगलियां उठाई गई थी। तुलसी आप देश में कैसे बेचोगे, विदेश में कैसे तुलसी लोग खरीदेंगे, कोई जानता नहीं है। अमेरिका तो तुलसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आज मैं आपको बताते फक्र होता है कि अमेरिका में मेरा प्रोडक्ट सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, तुलसी टी। इंडिया के अंदर इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोडक्ट एंड वी आर प्रेजेंट इन ओवर 33 कंट्रीज। सो परसिस्टेंस इज व्हाट makes the difference. From the global point of view, to accept products coming from India, did you face a challenge in breaking a mindset? Yes, there is certainly a mindset, but at the same time I must tell you, today we are one of the most proud as far as Indians are concerned. We are the proud Indians where our supplements or so-called medicines are exported to over 33 countries. हमने भी जब ये प्रोडक्ट बनाना शुरू किया था, शुरू में हमारी तुलसी टी और जो सप्लीमेंट्स या फॉर्मुलेशन जो हम बोलते हैं वो हम अमेरिका में ही बनाते थे। एंड वी टुक दैट इनिशिएटिव, वी शिफ्टेड ऑल आवर प्रोडक्शन फ्रॉम यूएस टू इंडिया, एंड आई टेक प्राइड इन बीइंग अ इंडियन, एंड आई टेक प्राइड इन टेलिंग ऑन दिस शो दैट वी आर एक्सपोर्टिंग all products grown in India, produced in India, packed in India to over 33 destinations, and it's a feat, and I take this opportunity to thank all the family farmers, all the employees who are working with me who made this possible. When we talk of products linked to Ayurveda or traditional medicine, there is a huge conception that are there any chemicals in it or are there any steroids in it, because that's also a myth, and or very often truth also, depending on where the source is. So did you struggle with that? To me, unless a herb is organic, it is not Ayurvedic. When I say it is organic, means the herb does not has any of these added toxics or heavy metals in it, or if they are there, at least they are meeting as per the World Health Organization standards. So personally I strongly feel if a herb is organic, then only it is Ayurvedic. और मैं बिल्कुल खुल के आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, यही एक बहुत बड़ा तकलीफ रही है कि आयुर्वेदिक इंडस्ट्री इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाई। एक यही बहुत बड़ी वजह रही है कि आयुर्वेदा को ऑल्टरनेट मेडिसिन तक बोल दिया गया है, जबकि मेरे हिसाब से आयुर्वेदा इज द रियल मेडिसिन एंड अदर्स आर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। बिकॉज यदि आप आयुर्वेदा लेते हैं, आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं, आपको मेरे ख्याल से यदि तकदीर अच्छी है तो दूसरी ऑल्टरनेट मेडिसिन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। We're going to go in for a short break, Kishan. When we come back, I want to know how elitist is your product. Is it only meant for certain people who can afford this chai? Because chai though is required as a cheap drink which Absolutely. everybody can afford and all Yes. of us can have. So इस पे बात करेंगे और आपके बारे में और जानेंगे। अभी एक छोटा सा विराम लेते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।